Hello everyone. Good morning. Today we will continue our chapter geomorphic process. Now, initially we study that what is geomorphic process and what are the first we recollect all the informations that we previously studied. Number one, that what is geomorphic process? The pressure, all the exogenetic and endogenetic forces which causes changes on the landforms of the earth is known as geomorphic process. Now what is endogenetic forces? Endogenetic forces are those forces which emerge from the earth's surface, within the earth's surface. Okay, now what is exogenetic forces? Exogenetic forces, which the forces which exerts from outside the earth and from the environment. Okay, now what are the agents of exogenetic forces? There are lots of agents. Number one, air. Number two, water. Number three, sunlight. Number four, ice. And five, and then after number five is your regarding that air. Okay, so this is your major agents of exogenetic forces. Now, as we already studied about the topic that is known that the basic topic which is known as what endogenetic forces, in which we study that endogenetic forces is of many of times. The number one is diastrophism, that basic reasons which causes the endogenetic forces. So number one is diastrophism. Now what is diastrophism? We already studied that diastrophism is a process in which what happens, the we study that all the processes in which the landforms are constructed. Okay, diastrophism is a process in which we study that how the landforms are constructed and all the process in which landforms are created. Now, how many types of diastrophism are there? Epiorogenic, orogenic, earthquake, and volcanism. Okay, now sorry, volcanism, that plate tectonics. These all are the processes which included in diastrophism. Now come to the next topic that we already study is that volcanism. Volcanism is a very concern. Volcanism is a process in which magma, in which the magma is erupted from the earth's surface or from the mantle of the earth above the earth's surface and converted as a lava and form a rock. Okay, and the what type of rock the that lava form? We all know that it is a type of igneous rock. Okay, now so far we see all that. Now the next topic of our is that what exogenetic forces, in which we completed the exogenetic forces, the forces which exerts pressure from outside the earth and which causes the deposition, which causes which causes or create a deposition in the landforms, which deposit materials in the landform, which denude the landform, and which also causes changes in the earth's surface. Okay, now एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हमने बेसिकली ये इतना पढ़ लिया था. अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज़ योर the type of exogenetic forces. Number one is mass wasting. Then after we study about the that weathering. Okay, so here I am concerning with your weathering topic. Okay, so what is weathering? होता क्या है weathering? Earlier I also explain you that what is weathering. Weathering is a process in which the rock formation is changes. Beta, be careful. I already explained you in the previous class or in previous video that weathering, here the weathering does not means the change in the climatic condition. Here the weathering means the change in the rock formation or change in the physical, chemical or the biological decomposition or the biological composition of rock. Getting my point? यहाँ वेदरिंग का मतलब मौसम परिवर्तन नहीं है. यहाँ वेदरिंग का मतलब है कि किस तरह से फिजिकल, केमिकल और कॉम्पोजिशनल या बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं रॉक्स में, उसका मतलब है वेदरिंग. रॉक एक ही जगह पर खड़े खड़े या एक ही जगह पर रखे रखे किस तरह से उसके शेप में बदलाव आ जाते हैं, वो है क्या? वेदरिंग. ठीक है, तो वेदरिंग को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अगर आप चाहो तो इस स्लाइड में देख सकते हो दैट वेदरिंग इज अ प्रोसेस दैट अकर टू ब्रेक डाउन रॉक इनटू सॉइल. वेदरिंग एक प्रोसेस है जो कि रॉक को क्या करती है? तोड़ती है या ब्रेक डाउन करती है. कॉमन है तोड़ना और ब्रेक डाउन. तोड़ती है सॉइल्स में, है ना, सॉइल्स में कन्वर्ट करती है. जैसे हम देखें, आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा टाइप ऑफ सॉइल. एलिवल सॉइल का जो फॉर्मेशन है ना, वो इग्निशियस रॉक से होता है. व्हेन इग्निशियस रॉक गेट हिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ना, देन इट कन्वर्ट एज अ एलिवल सॉइल. सो सिमिलरली द एलिवल सॉइल का फॉर्मेशन, या अगर मैं बात करूँ इंडोगैंगनेटिक प्लेन का फॉर्मेशन जो है वो एलिवल सॉइल से हुआ. तो एलिवल सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ? एलिवल सॉइल का फॉर्मेशन इग्निशियस रॉक से ही होता है बिकॉज इट्स वेरी फर्टाइल. गेटिंग माई पॉइंट नाउ?
तो इग्निशियस रॉक जो है, या अगर मैं बात करूँ, वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का ब्रेक डाउन होना, तोड़ना, कन्वर्टेड इनटू अ रॉक, ओके, कन्वर्टेड इनटू अ सॉइल। दिस प्रोसेस इंक्लूड वाटर फ्रीजिंग, थॉइंग, लैंडस्लाइड्स, विंड एंड केमिकल एक्शंस। अब ये जो ब्रेक डाउन है वो कई तरह से हो सकता है, या तो लैंडस्लाइड्स हो गया। लैंडस्लाइड्स क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि होता क्या है, एक लैंड जो रहता है, समझ लो एक कॉमन लैंड है, अब उसमें से एक जो लैंड था वो थोड़ा सा क्रैक आ गए उस कॉमन लैंड में, तो एक उसका जो क्रैक हुआ, उस क्रैक का राइट हैंड साइड का जो लैंड था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गया, और एक ऊपर की तरफ अपने आप वहीं स्टेबल्ड है। तो आपको एक तरह से स्टेयर्स जैसा लैंड फॉर्म दिखेगा, उसे कहा जाता है क्या, लैंडस्लाइड, ठीक है। विंड और केमिकल, हवा के कारण और केमिकल एक्शंस के कारण भी क्या होता है, रॉक्स में चेंजेस आते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज योर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेदरिंग। कौन कौन से फैक्टर्स है जो वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या है, प्रेशर किस तरह से, मतलब कि आपका रॉक में क्या करता है, डिफॉर्मेशन में काम आता है। देखो, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है रॉक में चेंजेस करता है। पहली बात तो ये कि आपका जो प्रेशर है वो है क्या। देखो, हमने पिछली बार पढ़ा था कि अगर किसी एक स्पेसिफिक रीजन में आप प्रेशर डालते हो तो स्ट्रेस क्रिएट होता है ना। अब जो स्ट्रेस है वो पर यूनिट एरिया में, जब किसी भी आप लैंडफॉर्म या पर यूनिट एरिया में स्ट्रेस डालते हो, प्रेशर डालते हो, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, या तो आप उसको पुल कर रहे होते हो लैंडफॉर्म को, या तो पुश कर रहे होते। जब आप या पुल कर रहे होते हो तब, जब आप पुश कर रहे होते हो तब क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। जब ये स्ट्रेस क्रिएट होता है तो होता क्या है, या स्ट्रेस इन द इनडायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर। जब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो होता क्या है, या तो लैंडफॉर्म अंदर की तरफ धंसता है, मतलब कि बहुत बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, अगर मैं बात करूँ होल हो जाते हैं अर्थ फॉर्म में, या तो वो ऊपर की तरफ उठता है। तो ये जो प्रेशर है इसके कारण क्या होता है, वेदरिंग कैसे होती है। अब रॉक जो है, रॉक में ग्रेविटी, रॉक जो है वो या तो वेदरिंग के का रॉक जो है वो या तो प्रेशर के कारण अंदर की तरफ धंसेगी, मतलब कि गायब हो जाएगी लैंडफॉर्म से, या तो वो अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के अंदर वाले प्रेशर से, इंटीरियर प्रेशर से ऊपर की तरफ आएगी, मतलब कि और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, वेदरिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि क्या करती है, रॉक की अपर लेयर को हटाती है। रॉक का अपर लेयर, अगर आप, मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊं, तो हम कई बार देखते हैं कि फॉर एग्जांपल या एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल होगा, इट इज़ वेरी डिफरेंट, शायद आपको लगे कि क्या बता रहे हैं सर। देखो, हमारी जो स्किन रहती है उसमें से एक साल में या 2 साल में एक बार हमारी स्किन का जो अपर लेयर रहती है वो थोड़ा सा निकलती है ना। सिमिलरली क्या होता है, रॉक का जो अपर लेयर रहती है, वो लेयर जो रहती है वो निकलती है, उठती है, उसे कहा जाता है क्या, एक्सफॉलिएशन। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर वेदरिंग। वेदरिंग वैसे मैंने पढ़ा दिया, बता दिया है, फिर अब हम देख रहे हैं इसमें कि वेदरिंग कितने प्रकार की होती है। वेदरिंग मोस्टली क्लासिफाइड एज अ थ्री सेक्शंस। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग वो वेदरिंग होती है जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि सॉल्यूशंस होते हैं अलग अलग केमिकल एजेंट्स की हेल्प से क्या किया जाता है, वेदरिंग होती है। मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है कि रॉक फॉर्मेशन की जो प्रोसेस रहती है उसी प्रोसेस के फॉर्मेशन में वेदरिंग हो जाती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिके है ना, प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिकेज रहते हैं और एनिमल ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज जो रहती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्रिएट करती है। ओके, नाउ व्हाट इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब है डीकॉम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण जो डीकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन है रॉक होता है रॉक का, उसे हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। ओके, नाउ वाटर कॉजिंग इन द केमिकल चेंज कॉजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक। वाटर बहुत मेजर रीजन है किसका, केमिकल वेदरिंग का। अब टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग में हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग में, दैट सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है, ये टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग है बेटा, याद रखना, 4 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। देखो, होता क्या है, सॉल्यूशन का यहाँ मतलब है जब आप क्या करते हो, जब वाटर जो रहता है, ठीक है, बहुत क्लियरली सुनना, क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब है जब वाटर में
कोई भी केमिकल कंपोनेंट मिक्स हो जाता है या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मिक्स होकर क्या करता है, सॉल्यूबल मतलब कि घुलनशील हो जाता है, तब क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और ये सॉल्यूशन के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं, ठीक है, ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और इस सॉल्यूशन के कारण क्या होता है, एसिडिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होती है, रॉक्स में हिट होता है। और रॉक्स में हिट होने के कारण क्या होता है, रॉक्स में जब वाटर ऐड हो जाता है ये केमिकल वाला, ड्यू टू एनवायरमेंटल प्रोसेस, होता क्या है, ठीक है, ऐड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन में। तो उसके कारण क्या होती है, जो रॉक होती है वो अपनी जगह में चेंज होने लगती है, मतलब कि कम होने लगती है, ठीक है। नाउ कम टू दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस एयर में या एटमॉस्फेयर में जहाँ रॉक प्रेजेंट है बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब एक और टॉपिक यहाँ नहीं है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। जहाँ रॉक है वहाँ अगर ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो था रॉक में वो कम होते जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक है। कार्बोनेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है वाटर या एयर में, है ना, और प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशन, ठीक है। हाइड्रेशन क्या होता है, देखो हाइड्रेशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये थोड़ा अच्छे से समझना और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को अगर मैं इस एग्जांपल से समझाऊँ कि आपने कई सारे ऐसे वो देखे होंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ सीड्स, जैसे अगर मैं बात करूँ आप अगर बात करते हो किसके, ये चना वगैरह की, या अगर मैं बात करूँ छोले की, तो आप क्या, जो जब वो आप उन्हें पानी में नहीं सोक करते हो, है ना, जब तक आप पानी में उन्हें नहीं फुलाते हो तब तक क्या रहता है, वो बिल्कुल भी क्या नहीं रहता, थोड़ा बड़े नहीं होते, या एक तरह से देखा जाए उनका साइज़ बड़ा नहीं होता है ना। बेटा इसको एज एन एग्जाम्पल ही लेना, ठीक है, साइज़ बड़ा नहीं होता है, लेकिन जैसे आप उसे पानी में डालते हो, छोले या किसी, है ना, छोले या चने को, तो उनका साइज़ जो रहता है वो बढ़ जाते हैं, है ना, और वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जब रॉक में पानी बढ़ जाता है तो क्या होता है, रॉक जो रहती है वो फूल जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है, रॉक एक तरह से बढ़ जाती है और सॉफ्ट नहीं होती, बट ठीक है, रॉक बढ़ जाती है और थोड़ा सा उसके इंटीरियर पार्ट सॉफ्ट हो जाते हैं, एक्सटीरियर पार्ट नहीं, मतलब ऊपर का लेयर सॉफ्ट नहीं होता, आप उस रॉक में बैठ पाओगे, इतना है। तो वो जो रॉक है उसमें पानी ऐड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइट, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको किसके बारे में, हाइड्रेशन के बारे में। तो क्या होता है, जैसे ही पानी उसमें ऐड होता है तो होता क्या है, आपका कैल्शियम रहता है वो सल्फेट में बदलने लगता है। और वाटर में जब हाइड्रेशन होता है तो हाइड्रेशन में होता क्या है कि जो आपका कैल्शियम रहता है वो सल्फेट में बदलने लगता है, और इस तरह की प्रोसेस बार बार होती है। और जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है तो होता क्या है, रॉक थोड़ी तरह से फैटीग मतलब थक जाती है अंदर ही अंदर, ठीक है, कंटिन्यूसली जो चल रहा है जो प्रोसेस, जिसके कारण क्या होता है, रॉक का डिफॉर्मेशन या रॉक टूट जाती है, ठीक है। रॉक का टूटना इसी के कारण होता है, मतलब रॉक कई पार्ट में क्या होती है, टूट जाती है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नाउ तो हमने क्या क्या देख लिया, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन। कार्बोनेशन के कारण आपकी इसमें लिखा नहीं है, कार्बोनेशन के कारण होता क्या है, केव का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो होता क्या है, रॉक में हिट हो रहा है कार्बोनेटिव रिएक्शंस, जब एक तरह की रॉक क्लियर हो जाएगी तो साइड से क्या होता है, नीचे 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 रॉक और हिट होती जाती है, और एक तरह का क्या होता है, केव का मतलब कि मैं कहूँ गुफा का फॉर्मेशन होता है किसमें, कार्बोनेशन में, ठीक है। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट हेडिंग में। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ड्यू टू सेवरल टेक्निकल रीजंस आज मैं आपको पेन लिख के नहीं बता पा रहा हूँ बेटा, लेकिन ये वीडियो में एक बार और अपलोड करूँगा, ठीक है, तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं इफ़ यू वांट। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आई एम नॉट एबल टू राइट दिस ऑल, ओके। सो अब आते हैं हम किस में, इम्पैक्ट्स ऑफ वेदरिंग, ओके। इम्पैक्ट ऑफ वेदरिंग में हम देखेंगे, ये बिल्कुल लास्ट और कंक्लूडिंग पार्ट है, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वेदरिंग में हमें देखेंगे, द थर्ड इम्पैक्ट ऑफ वेदरिंग इज द फॉर्मेशन। इम्पैक्ट ऑफ वेदरिंग का सबसे पहला काम ये है कि क्या करती है, ये सॉइल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। शुरू में मैंने बता दिया कि रॉक को हिट करा जाता है, और रॉक को ही कई पार्ट्स में आप बहुत ज़्यादा क्या करते हो, माइन्यूट पार्ट्स में तोड़ते हो, बार बार रॉक हिट होती है तो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, और सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद पहला तो यही इम्पैक्ट है। दूसरा क्या है, सॉइल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग, क्रिएट्स बोथ सॉइल्स एंड अदर लूज रॉक फ्रेगमेंट्स, ओके। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ
जो रॉक का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, यहाँ थर्ड और फोर्थ लिखा है, उसको आप फर्स्ट और सेकंड कर लेना, ठीक है। द फर्स्ट इम्पैक्ट एंड द सेकंड इम्पैक्ट, थर्ड और फोर्थ इम्पैक्ट कुछ नहीं है। तो जो फर्स्ट इम्पैक्ट है वो क्या है आपका, कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है रॉक के कारण। सेकेंड इम्पैक्ट क्या है कि वेदरिंग जो है, ठीक है, वेदरिंग के कारण क्या होता है, रॉक में मॉडिफिकेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंजेस के कारण क्या होता है, केमिकल चेंजेस के कारण क्या होता है, केमिकल चेंजेस के कारण रॉक के अलग अलग शेप और अलग अलग तरह के हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंसलबर्ग की, आप क्लास 12th में पढ़ोगे, इंसलबर्ग इज अ टाइप ऑफ बिग माउंटेनियस लैंडफॉर्म, जिसके पीछे इजिप्ट, इथोपिया में क्या बनाए जाते हैं, नाइजीरिया में घर बनाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया, वो एक तरह से देखा जाए सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा है। तो ये है आपका एक तरह से वेदरिंग के इम्पैक्ट्स। तो सो फार हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, अब हम आपको डिटेल में, है ना, फिर हम एक बारी मैं इसको इंक्लूड करके, और आपका कौन सा वाला टॉपिक, दैट द अदर दैट मैकेनिकल और बायोलॉजिकल टॉपिक को इंक्लूड करके एक बार और वीडियो रिलीज करूँगा। आप 2-3 बार वीडियो चेक करते रहिएगा मेरी, ठीक है, इसी चैनल पे। और हो सके तो मैं आप लोगों को लिंक, जब मैं एडिट करूँगा ना वीडियो के नीचे लिंक, तो उसमें अपनी लिंक डाल दूंगा, जो नई वीडियो डालूंगा, तो आप उसके थ्रू जाकर मेरी न्यू वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपकी क्लास है, तो दैट्स वाई आई एम पुटिंग दिस वीडियो। तो आप इसको क्लियरली देखिए बेटा, समझ में नहीं आता है तो आप अपने रिस्पॉन्स दीजिए। क्लास 11th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, दिस क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू यू। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आपके इंटरनल मार्क्स में काफ़ी प्रॉब्लम जा सकती है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, है ना, क्योंकि मुझे रिपोर्ट देनी है आपके सब्जेक्ट टीचर को, और देन आफ्टर आई हैव टू गो ओवर, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि आप अपने टॉपिक्स वगैरह प्रॉपर बनाकर व्हाट्सएप करिए, ठीक है। आपका नया एडमिशन है, पुराना एडमिशन है, नो मैटर्स, एटलीस्ट आप सेंड करिए, ठीक है। सो टिल देन बाय एंड स्टे हेल्दी।